میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا ہمارے چینل فرسٹ لرننگ پر خیر مقدم استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، جھارکھنڈ کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ رانچی ماڈل پیپر ہے 2024-25 کے۔ یہ کلاس 9th والوں کے لیے ہے اور یہ جیک بورڈ کا ماڈل کوشچن پیپر ہے۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے محمد حسین، ان کے کمنٹ آ رہے تھے کہ میم جیک بورڈ کا کروا دیجئے۔ چونکہ جیک بورڈ اور CBSE بورڈ دونوں میں نوائے اردو اور گلزار اردو پڑھائی جاتی ہے، اس لیے CBSE بورڈ والے اور جیک بورڈ والے دونوں اس کوشچن کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں سب سے گزارش کروں گی جو بھی جیک بورڈ کے ہیں اور جو بھی CBSE بورڈ کے ہیں اس کوشچن کو ضرور دیکھیں، کیونکہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کس ٹائپ کے کوشچن آ سکتے ہیں۔ تو اس ماڈل پیپر کو آپ ضرور دیکھیے، پوری ویڈیو کو دیکھیے اور اسکپ کیے بغیر دیکھیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ پوری دیکھ لیتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ کا آدھا کوشچن پیپر سالو ہو گیا ایگزام کا، کیونکہ ایگزام میں بالکل اسی ٹائپ کے اسی پیٹرن کے کوشچن آئیں گے۔ تو آئیے کوشچن شروع کرتی ہوں، اور میں ایک بار پھر بتا دوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں محمد حسین، انہی کے کہنے پر میں جیک بورڈ کا بنا رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ آگے بھی بناؤں گی، کلاس 10th 11th 12th کے لیے بھی جیک بورڈ کا ماڈل کوشچن پیپر بناؤں گی۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتی ہوں۔ یہ آپ کا کلاس 9th ہے، یہ کلاس 9th کا ہے، اردو ہے، اور آپ کے جو ٹائم ہے 1.5 گھنٹہ ہے، یعنی 1 گھنٹہ 30 منٹ ہے، وقت 1 گھنٹہ 30 منٹ، ٹھیک ہے، 9ویں جماعت کے لیے ہے، اور یہ 2024-25 کا ماڈل کوشچن پیپر ہے۔ اس پرچہ میں 40 سوالات ہیں اور سبھی سوالات لازمی ہیں، ہر ایک کے لیے 1 نمبر مختص ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 40 سوال دیے گئے ہیں اور ہر ایک سوال کے لیے اس میں 1 نمبر رکھا گیا ہے، یعنی آپ ایک سوال کا جواب دیں گے صحیح تو آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ تو 40 سوالوں کے لیے 40 نمبر کا آپ کا کوشچن پیپر ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل غیر درسی اقتباس کو پڑھ کر نیچے دیے گئے سوالات کا جواب دیں۔ آپ کا یہ غیر درسی اقتباس ہے، یعنی آپ کی بک سے نہیں لیا گیا ہے، کسی دوسری بک سے لیا گیا ہے۔ تو اس اقتباس کو ہم پڑھیں گے اور اس میں سے جو بھی سوال جواب پوچھے جا رہے ہیں ان کا جواب دیں گے۔ تو آئیے پہلے پڑھتے ہیں۔ کتابیں پڑھنے سے انسان کے دل دماغ کو ایک تازگی، خوشی اور تسکین ملتی ہے، روح کی بالندگی ہوتی ہے، روح کو سکون ملتا ہے، ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے، ذخیرہ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ کتاب پڑھنے سے کتنا اچھا معلوم ہوتا ہے، واقعی یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جب میں بھی کتاب پڑھتی ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، کیا ہے، خوشی اور تسکین ملتی ہے، روح کی بالندگی ہوتی ہے، روح کو سکون ملتا ہے، اور ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو ضمیر ہے وہ اسے کیا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ ذخیرہ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی ہماری جو معلومات ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ذخیرہ کہتے ہیں کسی چیز کو جمع کر کے رکھنا، تو ہمارے معلومات میں بھی کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ انسان زندگی کے مقاصد کو جان پہچان سکتا ہے، انسان کی جو جینے کا مقصد ہے اسے انسان جان پہچان سکتا ہے، اور اس کے زندگی کے تمام پہلوؤں سے اپنے آپ کو اجاگر کر سکتا ہے، روشناس کر سکتا ہے، روشناس یعنی پہچان کر سکتا ہے۔ کچھ کتابیں ادبی ہوتی ہیں، کچھ کتابیں تفریحات اور طنز و مزاح سے لبریز ہوتی ہیں۔ تفریحات یعنی تفریح، ہنسی مذاق والی کتاب، طنز و مزاح یعنی ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی ہیں، جنہیں پڑھ کر انسان خوش ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مختلف مضامین کی کتابیں اور رسالے پڑھ کر انسان اکتاہٹ اور تنہائی کی دنیا سے کوسوں دور چلا جاتا ہے۔ جب ہم مختلف مضامین یعنی ٹاپک کی کتابیں پڑھتے ہیں، رسالے پڑھتے ہیں، تو انسان کیا ہے، اکتاہٹ اور تنہائی کی دنیا سے کوسوں دور چلا جاتا ہے، یعنی انسان کے اکتاہٹ اور تنہائی دور ہو جاتی ہے، اور اس خود غرض دنیا سے کنارہ کشی کر لیتا ہے۔ اور یہ جو خود غرض دنیا ہے تو انسان کیا ہے، کنارہ کشی کر لیتا ہے، کیونکہ وہ کتاب پڑھتا، اور کتاب پڑھ کے کیا اسے خوشی بھی ملتی ہے، تازگی بھی ملتی ہے، اس کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس کے معلومات میں کیا اضافہ ہوتا ہے۔ تو کتاب پڑھنے سے بہت فائدے ہیں، انسان کو کنارہ کشی کر لیتا ہے۔ کتابیں ہر مضامین اور ہر موضوع پر مبنی ہوتی ہے۔ ہر مضامین اور ہر موضوع یعنی موضوع کو جمع مضامین، یعنی ہر ٹاپک پر کیا ہے، کتابیں، یعنی ہر ٹاپک پر کتابیں ملتی ہیں، مثلا سائنس، تاریخ، جغرافیہ، فلسفہ، ادب وغیرہ، جنہیں پڑھ کر ہم کافی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔
जिन्हें पढ़कर हम काफ़ी मालूमात हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब, गूगल से भी हम बहुत सारी मालूमात अक्स करके इस्तेफादा कर सकते हैं। इस्तेफादा यानी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, मालूमात अक्स करके यानी मालूमात निकाल कर। लेकिन किताबों की कुछ और ही बात है, लेकिन किताब पढ़ने की बात ही अलग है। अब आइए इसके सवाल व जवाब देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, किताब पढ़ने से इंसान के दिलो दिमाग को क्या मिलती है? तो किताब पढ़ने से इंसान के दिलो दिमाग को क्या मिलती है? खुशी और ताजगी मिलती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ताजगी और खुशी मिलती है। ठीक है। सवाल 2 है, किस चीज़ से ज़ख़ीराए मालूमात में इजाफा होता है? तो किताब पढ़ने से ज़ख़ीराए मालूमात में इजाफा होता है। कौन सी किताबें पढ़कर इंसान खुश हुए बिना नहीं रह सकता? तो तंज़ व मज़्ह की किताबें पढ़कर इंसान खुश हुए बिना नहीं रह सकता। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तंज़ व मज़्ह से लबरेज होती हैं जिन्हें पढ़कर इंसान खुश हुए बगैर नहीं रह सकता। ठीक है। इंसान इस खुद गर्ज दुनिया से कब किनारा कशी इख्तियार कर लेता है? तो मुख्तलिफ मज़ामीन की किताबें और रिसाले पढ़कर। इंसान जब मुख्तलिफ मज़ामीन की किताबें और रिसाले पढ़ता है तो इस खुद गर्ज दुनिया से किनारा कशी कर लेता है, क्योंकि उसे अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को मिल जाती हैं और उसका वक्त अच्छा गुजरता है। इंसान ज़िंदगी के मकसद को कैसे जान पहचान सकता है? तो किताबें पढ़कर। इंसान क्या है? किताबें पढ़कर ज़िंदगी के मकसद को पहचान जाता है। मुंदरजा झैल बाला इक़्तिबास किस चीज़ की अहमियत को बयान करता है? यहाँ क्या होगा? मुंदरजा झैल। ठीक है। या मिनरजा लिखा गया, लेकिन ये गलत टाइपिंग हो गई है। मुंदरजा झैल बाला इक़्तिबास किस चीज़ की अहमियत को बयान करता है? ये जो हमने इक़्तिबास पढ़ा है, ये इक़्तिबास जो पढ़ा है, ये किस चीज़ की अहमियत को बयान कर रहा है? तो ये आइए देखते हैं, किताबें पढ़ने की अहमियत को बयान कर रहा है। ये क्या कर रहा है? जो हमें किताबें पढ़ना चाहिए, इसकी अहमियत को ये बयान कर रहा है। किताबों का ज़ख़ीरा हमें कहाँ मिलती है? किताबों का ज़ख़ीरा हमें घर पर मिलता है, स्कूल में, बाज़ार में या लाइब्रेरी में। तो किताबों का ज़ख़ीरा हमें लाइब्रेरी में मिलता है। ठीक है। मुंदरजा झैल शेरी इक़्तिबास को पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात का जवाब दीजिए। तो आइए अब इस शेरी इक़्तिबास को पढ़ते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक गुजारिश और करना चाहूँगी, बच्चों मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब देती हूँ। आप जो भी टॉपिक पर वीडियो बनाने बोलते हैं, मैं सारे टॉपिक पर वीडियो बनाती हूँ। तो आप भी हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें। मैं आपके लिए इतना मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ आप भी हमें सपोर्ट करें और हमें सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, और ख़ासकर मैं मोहम्मद हुसैन से कहूँगी, उनके कहने पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें। तो आइए इस शेरी इक़्तिबास को पढ़ते हैं। एक राजा के 3 बेटे थे जो इसे जानो दिल से प्यारे थे। जबकि वो हो गया बूढ़ा, उसने तीनों को यूं बुला के कहा, ऐ मेरे बच्चे जान से प्यारो, बूढ़े बाबा की आँख के तारो, अब तो मैं हो गया बहुत बूढ़ा, आ गया वक्त आखिरी मेरा। अब मैं चाहता हूँ ऐ बेटो राजगद्दी पे सौंप दूँ तुमको, मुझ पे लेकिन एक आन बड़ी मुश्किल, जो हकीकत में है बड़ी मुश्किल, और वो ये है ऐ मेरे बच्चों कि तुम आपस में 3 भाई हो। एक होता तो उसको देकर राज बैठ जाता अलग में होकर आज, लेकिन अब जांचना पड़ेगा मुझे इसके काबिल है कौन तुम में, किसको कर दूं मैं राज का मालिक, इस तख्त का और ताज का मालिक। एक राजा है जो बहुत बूढ़ा हो गया है, उसके 3 बेटे हैं। तो वो तीनों बेटों कर बुलाकर कहता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं ये राजगद्दी सौंपना चाहता हूँ। तो मुझे एक बेटा होता तो मैं उसे दे देता, लेकिन तुम 3 हो, अब तुम 3 में मुझे जांचना पड़ेगा कि कौन इसके काबिल है, फिर मैं उसको अपना राजगद्दी दूंगा। तो आइए अब देखते हैं इसके सवाल। राजा के कितने बेटे थे? तो राजा के 3 बेटे थे। राजा ने कब तीनों बेटों को बुलाकर बातें की? तो राजा जब बूढ़ा हो गया, जब राजा बूढ़ा हो गया तब उसने तीनों बेटों को बुलाकर बात की। बूढ़े बाबा के आँख के तारे कौन थे? तीनों लड़के। ठीक है, उनके तीनों लड़के आँख के तारे थे। राजा अपना राजगद्दी क्यों सौंपना चाह रहा था? वो बीमार रहता था, वो बूढ़ा हो गया था, वो आराम करना चाहता था, तो वो बूढ़ा हो गया था। इसका जवाब क्या होगा? वो बूढ़ा हो गया था। आखिरी वक्त किनका आ गया था? आखिरी वक्त किनका आ गया था? राजा का। राजा का आखिरी वक्त आ गया था। राजा तीनों बेटों में क्या जांचना चाह रहा था? चालाक कौन है, गद्दी के लायक कौन है, सुस्त कौन है, होशियार कौन है।
तो राजा क्या जांचना चाह रहा था कि गद्दी के लायक कौन है, जो गद्दी के लायक होगा उसे गद्दी दे दूंगा। अगर एक ही बेटा होता तो राजा क्या करता, उसी को गद्दी दे देता। अगर उसका एक बेटा होता तो वो उसी को गद्दी दे देता। आइए मुंदरजा झैल दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात का जवाब दें। ये आपके दरसी इक़्तिबास है, यानी आपकी किताब से दिया गया है। मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कम थी और खर्च ज़्यादा। अपने बच्चा के लिए दाया रखना गवारा नहीं कर सकते थे, लेकिन एक तो बच्चे की सेहत की फिक्र, दूसरे अपने बराबर वालों से हटिए बनकर रहने की जिल्लत इस खर्च को बर्दाश्त करने पर मजबूर करती थी। एक तो उनको बच्चे की सेहत की वजह से दाया रखना पड़ा, और दूसरे अपने बराबर वालों से बराबरी करने के लिए भी इंसान क्या है, अपने यहाँ नौकर रखता है, दाया रखता है। खर्च को तो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन मजबूरी में इस खर्च को बर्दाश्त कर रहा था। कौन? साबिर हुसैन। ठीक है, साबिर हुसैन एक आदमी है, उनकी बीवी का नाम शाकरा है और एक छोटा बच्चा है उनके पास, और उनकी दाया का नाम अब्बासी था। ठीक है, और आपकी जो ये कहानी है, कहानी का नाम है हज अकबर, और किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। ये जो हम इक़्तिबास पढ़ रहे हैं, ये इक़्तिबास किस कहानी से लिया गया है? हज अकबर से लिया गया है, और जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। बच्चा दाया को बहुत चाहता था। बच्चे का नाम क्या था? नसीर। हर दम इसके गले का हार बना रहता था। इस वजह से दाया और भी ज़रूरी मालूम होती थी, मगर शायद सबसे बड़ा सबब यह था कि वो मुरब्बत के बाअस दाया को जवाब देने की जुरात ना कर सकते थे। दाया बच्चे से इतनी मोहब्बत करती थी कि वो कभी दाया को जवाब नहीं देते थे। बुढ़िया इनके यहाँ 3 साल से नौकर थी। बुढ़िया यानी अब्बासी इनके यहाँ 3 साल से नौकर थी। इसने इनके इकलौते बच्चे की परवरिश की थी, अपना काम दिलो जान से करती थी। इसे निकालने का कोई हीला ना था, यानी कोई हीला यानी बहाना ना था, और खामखा कीड़े निकालना साबिर जैसे हलीम शख्स के लिए गैर मुमकिन था। साबिर हुसैन क्या एक हलीम इंसान थे, यानी एक अच्छे सुलझे हुए इंसान थे, तो वो खामखा किसी के अंदर कीड़ा नहीं निकालते थे। मगर शाकरा इस मामले में अपने शौहर से मुत्तफिक ना थी। शाकरा उनकी बीवी थी साबिर हुसैन की, और इस मामले में अपने शौहर से मुत्तफिक ना थी, यानी इत्तफाक नहीं रखती थी। वो अपने शौहर की बात नहीं मानती थी। उसको लगता था कि जो अब्बासी है, जो दाया है, वो बहुत बदमाश है, चालाक है, उसका सामान ले जाती है। इसे शक था कि दाया हमको लूट लेती है। जब दाया बाजार से लौटती तो वो दहलीज में छुपी रहती कि देखूं आटा छुपा कर तो नहीं रख देती, लकड़ी तो नहीं छुपा देती। इसकी लाई हुई हर चीज को घंटों देखती, बार बार पूछती इतना ही क्यों, क्या भाव है, क्या इतना महंगा हो गया है? क्योंकि शाकरा को क्या अब्बासी पर शक होता था कि वो सामान चुरा लेती है या दाम बढ़ाकर बताती है, तो इसीलिए वो बार बार सवाल पूछती थी कि क्या भाव बढ़ गया है, क्या इतना महंगा हो गया है। दाया कभी इन बदगुमानियों का जवाब मुलायमियत से देती, लेकिन जब बेगम ज्यादा तेज हो जाती तो वो भी कड़ी पड़ जाती। अब आइए इसके सवाल जवाब देख लेते हैं। मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कितनी थी? तो आमदनी कितनी थी उनके? खर्च और आमदनी बराबर थी, आमदनी कम और खर्च ज्यादा। मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कितनी थी? तो आमदनी कम और खर्च ज्यादा था। मुंशी साबिर हुसैन का क्या है? आमदनी कम और खर्च ज्यादा था। देखिए यहाँ लिखा हुआ आमदनी कम थी और खर्च ज्यादा था। दूसरा सवाल देखते हैं, दाया को सबसे ज्यादा कौन चाहता था? तो दाया को सबसे ज्यादा बच्चा चाहता था, जो उनका बच्चा था जिसका नाम नसीर था। बुढ़िया साबिर हुसैन के यहाँ कितने दिनों से रहती थी? 3 साल से रहती थी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बुढ़िया इनके यहाँ 3 साल से नौकर थी। तो बुढ़िया साबिर हुसैन के कितने साल से रह रही थी? 3 साल से रह रही थी। मुंशी साबिर हुसैन के कितने बच्चे थे? तो मुंशी साबिर हुसैन के 1 बच्चे थे। ठीक है, ये मुंशी थे साबिर हुसैन और इनके 1 बच्चे थे, और इनकी जो दाया थी उनका नाम अब्बासी था, जो उनकी बच्चे की देखभाल करती थी, और बच्चे का नाम नसीर था। देखिए अगर आपने इस कहानी को पढ़ा हो तो बहुत आसानी से इसके सवाल जवाब आप दे पाएंगे, और अगर नहीं भी पढ़ा तो इसे एक बार खूब अच्छी तरह से पढ़ के इसके जवाब लिख लीजिएगा। कोई भी इक़्तिबास आएगा आप उसको एक बार गौर से पढ़ के और फिर उसके सारे सवालों के जवाब दे दीजिएगा। और मैं ये जो क्वेश्चन बनाती हूँ, आपके लिए जो वीडियो बनाती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक बच्चे कम से कम 10 शेयर कीजिए, ताकि हमारी वीडियो की भी व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े, और मेरी भी हौसला अफजाई हो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे हौसले के लिए थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कर लें। किसे शक था कि दाया हमें लूट लेती है?
शाकरा को। शाकरा साबिर हुसैन की बीवी थी और इसको शक था कि हमें दाया लूट लेती है, या लूट लेती है मतलब मेरा बहुत सामान छुपा लेती है, चुरा लेती है और अपने पास ले जाती है, यही सब बात वो सोचती थी। दाया की लाई हुई चीज़ को घंटों कौन देखती थी? शाकरा साबिर हुसैन की बीवी थी और बच्चे की माँ थी। मुंदरजा झैल बाला इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है? आपके सबक का क्या नाम है? भोला, नया कानून, आजमाइश, हज अकबर। तो क्या नाम है? हज अकबर। ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि इसके मुसन्निफ कौन है? तो इसके मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद है। हज अकबर किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। ये आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो हज अकबर किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। आइए आगे देखते हैं। मुंदरजा झैल शेरी इक़्तिबास को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात का जवाब दें। अश्क आंखों में कब नहीं आता? अश्क यानी आंसू। अश्क आंखों में कब नहीं आता? लहू आता है जब नहीं आता। अश्क आता है, उसके बाद क्या? लहू भी आने लगता आंखों में। जब अश्क नहीं आता है तो आंखों से लहू आने लगता है। लहू यानी खून। होश जाता नहीं रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। सब्र था एक मुअन्नसे हिजरा। मुअन्नसे हिजरा, हिजरा यानी जुदाई और मुअन्नस यानी सब्र। मुअन्नस माने सब्र। सो वो मुद्दत से अब नहीं आता, दिल से रुख्सत हुई कोई ख्वाहिश, गर ये कुछ बेसबब नहीं आता। जी में क्या क्या है अपने ए हमदम, पर सुखन ताबे लब नहीं आता। दूर बैठा गुबार मीर इससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। ये गज़ल किसकी है? मीर की है। देखिए आखिरी में मख्ता का शेर है जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। दूर बैठा गुबार मीर इससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। तो ये मीर तकी मीर की गज़ल का शेर है और आपकी किताब से लिया गया है, आपके निसाब में शामिल है। तो इससे कुछ सवाल दिए गए हैं, आइए इसके सवाल देख लेते हैं। मुंदरजा झैल बाला गज़ल किसकी है? किसकी है? तो मीर की है। हम लोग फ़ौरन पहचान जाएंगे मीर की है। ठीक है, ये बहुत आसान है। दूर बैठा गुबार मीर इसकी, तो ये मीर की गज़ल है। लफ्ज़ अश्क के क्या माने हैं? लफ्ज़ अश्क के माने होता है आंसू। क्या होता है? आंसू। मुअन्नसे हिजरा कौन था? मुअन्नसे हिजरा कौन था? सब्र। ठीक है, हिजरा माने होता है जुदाई और मुअन्नस माने सब्र। लफ्ज़ लब के क्या माने हैं? लब के माने क्या होता है? होंठ होता है। लब के माने होंठ होता है, ये तो आप जानते हैं। और बहुत ही आसान सवाल जवाब है। जैक बोर्ड क्या है? CBSE बोर्ड से आसान है। इसके सवाल जवाब उससे बहुत ज़्यादा आसान है। तो जो भी CBSE बोर्ड वाले बच्चे हैं वो जैक बोर्ड का क्वेश्चन ज़रूर देखें क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किस किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं और आपके एग्जाम में बहुत ही आसानी होगी आपको जवाब देने में। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। अदब किसके बगैर नहीं आता? किसके बगैर अदब नहीं आता? इश्क के बगैर अदब नहीं आता। ठीक है। आपकी किताब का पहला सबक इंशाइया गुजरा हुआ ज़माना किसकी है? आपकी किताब में पहला सबक क्या है? इंशाइया है और उसका नाम क्या है? गुजरा हुआ ज़माना। किसने लिखी है? तो सर सैयद अहमद खान ने लिखी है। आपको याद होगा सर सैयद अहमद खान का गुजरा हुआ ज़माना क्या है? क्या है? इंशाइया है। ठीक है, ये इससे आपको मिल गया इंशाइया गुजरा हुआ ज़माना। तो गुजरा हुआ ज़माना क्या है? इंशाइया है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई को हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछौना क्यों कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई को हिंदुस्तानियों का ओढ़ना और बिछाना क्यों कहा? क्योंकि सोने के काम आती है, अनाज सुखाने के काम आती है, ज़ियाफ़त के काम आती है, इन सभी में। ठीक है, इनमें सभी। तो जवाब क्या होगा? इनमें सभी। क्योंकि सोने के काम भी आती है, अनाज सुखाने के काम भी आती है और ज़ियाफ़त के काम में भी आती है। तो ये तीनों जवाब इसका होगा। तो क्या लिखेंगे? इनमें सभी। मुंदरजा झैल अल्फाज में फ़ेल की मिसाल कौन सी है? फ़ेल किसे कहते हैं? किसी भी काम को हम फ़ेल कहते हैं। और मैंने बताया था कि फ़ेल के 3 किस्में हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल। जो हम काम कर रहे हैं हाल में, माजी में या मुस्तक़बिल में। तो इसमें फ़ेल की मिसाल कौन सी है? आना और जाना फ़ेल है, यानी कोई काम है। पटना भी कोई काम नहीं है, बाजार भी कोई काम नहीं है, आमिर भी कोई काम नहीं, ये सब नाम है, ये सब इसमें है। लेकिन आना जाना एक काम है, तो ये फ़ेल हो गया। लफ्ज़ पुराना का मुताज़ाद क्या होगा? लफ्ज़ पुराना का मुताज़ाद यानी उल्टा क्या होगा? नया, बहुत पुराना, बहुत नया, इनमें से कोई नहीं, तो नया होगा। पुराना का उल्टा क्या होता है? नया होता है। सवाल नंबर 32 है, लफ्ज़ महफिल की जमा क्या है? लफ्ज़ महफिल की जमा महफिलों होगा। ठीक है। लफ्ज़ घड़ी की मुज़क्कर है, लफ्ज़ घड़ी मुज़क्कर है या मुअन्नस? बहुत आसान सवाल है, ये सारे सवाल बहुत आसान हैं। तो लफ्ज़ घड़ी मुज़क्कर है या मुअन्नस? तो क्या है? मुअन्नस है लफ्ज़ घड़ी। घड़ी अच्छी है, घड़ी टूट गई, घड़ी टंगी है। तो आप क्या करेंगे? पहले इसका जुमला बना लेंगे
اور جملہ جیسے سیٹ لگ رہا ہے سمجھ جائیے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو گھڑی اچھی ہے، گھڑی ٹوٹ گئی، تو اس سے کیا سمجھے گا؟ یہ مؤنث ہے. مندرجہ ذیل جملوں میں فعل مستقبل کی مثال کون سی ہے؟ اب میں نے آپ کو بتایا کہ فعل 3 طرح کی ہوتی ہے، حال، ماضی، حال اور مستقبل. تو آپ کو بتانا ہے کہ فعل مستقبل کون سا ہے. میں گھر گیا تھا، گھر پر ہوں، گھر جا رہا ہوں، میں گھر جاؤں گا. دیکھیے گیا تھا کیا ہو گیا؟ ماضی ہو گیا، یعنی بات ختم ہو گئی. گھر پر ہوں مطلب حال ہے، ابھی گھر پر ہوں. گھر جا رہا ہوں یہ بھی حال ہے. میں گھر جاؤں گا یہ کیا ہے؟ فعل مستقبل ہے. جاؤں گا یعنی آنے والے وقت میں کام کیا جائے گا. میں گھر جاؤں گا یہ کیا ہو گیا؟ فعل مستقبل ہو گیا. یہ صحیح ہے. غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا. غزل کا یہ شعر کن کا ہے؟ مومن کا ہے، ذوق کا ہے، غالب کا ہے، درد کا ہے. تو یہ مومن کا شعر ہے. ٹھیک ہے، کس کا ہے؟ مومن کا ہے. سوال 36 ہے، اسماعیل مریٹھی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو اسماعیل مریٹھی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ کیے جاؤ کوشش. یہ کس کی نظم ہے؟ اسماعیل مریٹھی کی ہے. رات اور ریل نظم کن کی ہے؟ تو رات اور ریل نظم کس کی ہے؟ اسرار الحق مجاز کی ہے. کس کی ہے؟ اسرار الحق مجاز کی ہے. یہ سارے کوشچن کو آپ خوب اچھی طرح سے یاد کر لیں، بلکہ رٹ جائیں. یہ سارے کوشچن آپ کو آئیں گے، کچھ نہ کچھ تو اس میں ضرور آئے گا، اس لیے سارے کوشچن کو یاد کر لیجئے. دیہات کی زندگی کن کا مضمون ہے؟ دیہات کی زندگی کس نے لکھی ہے؟ عبدالحلیم شرر نے لکھی ہے. کس نے لکھی ہے؟ عبدالحلیم شرر نے. حامد کتاب پڑھ رہا ہے، جملہ میں کتاب کیا ہے؟ حامد کتاب پڑھ رہا ہے، جملہ میں کتاب کیا ہے؟ کتاب کیا ہے؟ فعل ہے، فاعل ہے، فعل امر ہے، مفعول ہے. تو حامد کتاب پڑھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. تو جملہ میں کتاب کیا ہے؟ مفعول ہے، یعنی کتاب کو پڑھا جا رہا ہے، تو یہ مفعول ہے. تو سوال نمبر 40 جو آخری سوال ہے، شعر کی جمع کیا ہے؟ تو شعر کی جمع کیا ہے؟ اشعار ہوگا. تو یہ تو بہت ہی آسان کوشچن ہے. آپ کو جو غیر درسی اقتباس ہے اور غیر درسی نظم جو ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کر کے لکھنا ہے، باقی آپ کے بہت ہی آسان کوشچن ہے. تو آپ اپنی کتاب کا جو 1 نمبر والا کوشچن ہے وہ سب ضرور پڑھ لیجئے، یاد کر لیجئے. اور میں نے اس سے پہلے 2 MCQ کرائے ہیں، تو اسے آپ ضرور پڑھ لیجئے، خوب اچھی طرح سے یاد کر لیجئے. تو دیکھیے آپ کو بہت سارے کوشچن اس سے لڑیں گے. تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ کوشچن میں نے محمد حسین کے کہنے پر بنایا ہے. انشاءاللہ اور بھی جیک بورڈ کے کوشچن پیپر سالو کرواؤں گی. تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی. آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک سبسکرائب ضرور کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور ہمیں سپر تھینکس ضرور بھیجیں. میں سب بچے سے گزارش کر رہی ہوں کہ پلیز مجھے سپورٹ کریں اور مجھے سپر تھینکس ضرور بھیجیں. اللہ حافظ.